Welcome back to Business Morning and the special segment Economy Today. And Ajay, you will be explaining the topic for you now. और इकॉनमी टुडे यानी आपकी ज़िंदगी से जुड़े हर आर्थिक मुद्दों की पड़ताल करता हमारा ये नया कार्यक्रम सीधे आपसे जुड़ते हुए भी आज का मुद्दा है टेलीकॉम ऑक्शन की प्रक्रिया। अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, ट्विटर के जरिए सवाल कीजिए, कोई भी कन्फ्यूजन या फिर सवाल आपके दिमाग में है टेलीकॉम ऑक्शन प्रोसेस को लेकर के, हैशटैग इकॉनमी टुडे का इस्तेमाल कीजिए अगर आप ट्विटर के जरिए हमसे जुड़ना चाहते हैं। और आज के प्रोग्राम में जो सवाल है एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, टेलीकॉम ऑक्शन प्रोसेस जो है उससे जुड़ा होना चाहिए। economytoday.ddnews@gmail.com हमारा जीमेल आईडी है। अगर आप जीमेल के जरिए सवाल हम तक पहुँचाना चाहते हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं शुभमय भट्टाचार्य जी, जो कि वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड से जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जिसे हम कह रहे हैं इकॉनमी टुडे। And the countdown to the largest telecom sector auction has begun. In fact, India is going for the largest telecom spectrum auction that will begin on Saturday, that is October 1st, with 7 telecom operators participating. Let's have a look at this report. The telecom space is all set to buzz with the big spectrum auction. The spectrum auction begins on 1st of October and is the largest ever spectrum auction. Mobile frequencies in all 7 bands, 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz and 2500 MHz will be put on the block in the upcoming auction. This is the first time that the government will be auctioning premium airwaves in the 700 MHz band. The right to use spectrum will be allotted for 20 years and the total quantity of spectrum that will be put on auction will be 2354.55 MHz. 7 telecom companies have deposited 14,653 crore rupees as earnest money for the big auction beginning 1st of October. Reliance Jio has submitted 6,500 crore rupees. Vodafone India has submitted 2,740 crore rupees. Idea Cellular 2,000 crore rupees. Bharti Airtel 1,980 crore rupees. Tata Teleservices 1,000 crore rupees. Reliance Communications 313 crore rupees and Aircel 120 crore rupees. Spectrum will be assigned to the successful bidder within 30 calendar days from the receipt of the due amount. An investor can make full upfront or deferred payment. The Finance Ministry in its budget pegged the revenue target at 98,995 crore rupees from the telecom space, which includes 64,000 crore rupees from the auction of spectrum and rest from various levies and services this financial year. The spectrum auction is important because government is putting large chunks of spectrum up for sale. The government hopes to garner 5.56 lakh crore rupees from the spectrum auction. The spectrum auction hopes to solve the problem of fragmentation and improve the quality of services and solve the problem of call drops. With camera person Bheem, Siddhant Sitbal, DD News, New Delhi. और स्पेक्ट्रम ऑक्शन के बारे में आपने कई बार सुना होगा। आखिर क्या है पूरी प्रक्रिया और क्यों होता है ये ऑक्शन, आइए आपको बताते हैं। दूरसंचार सेवाओं को और सुगम बनाने के लिए सरकार 1 अक्टूबर से स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाने की प्रक्रिया को शुरू करने जा रही है। ये अब तक का सबसे बड़ा ऑक्शन होगा। सरकार को उम्मीद है कि 5.6 लाख करोड़ रुपए की बोली लग सकती है। आइए इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। आखिर क्या होता है स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम दरअसल खास तरह की रेडियो फ्रीक्वेंसीज हैं जो दूरसंचार कंपनियों को संचार सेवाएं देने के लिए मुहैया कराई जाती हैं। इन्हीं तरंगों के द्वारा हम आपस में बातचीत करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से ऑडियो और वीडियो साझा कर सकते हैं। ब्लूटूथ और वाईफाई के लिए भी इसी स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल किया जाता है। संचार सेवाओं के लिए 800 से 2300 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड का इस्तेमाल किया जाता है और इसी आधार पर 2G, 3G और 4G सेवाओं की तकनीक का विकास किया गया। इन स्पेक्ट्रम्स के लिए अलग अलग सर्कल्स अथवा देशों में अलग अलग तरह के रेगुलेशंस हैं और इसलिए हमें रोमिंग चार्ज देना होता है। क्या है टेलीकॉम ऑक्शन? पूरे देश में स्पेक्ट्रम को 22 सर्कल्स में बांटा गया है। शुरुआत में स्पेक्ट्रम के लिए कंपनियों को निश्चित अवधि के लिए लाइसेंस जारी किए जाते थे, जिन्हें रिन्यू कराना होता था। अब नए नियमों के तहत कंपनियों को लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए फ्रीक्वेंसी के लिए दाम चुकाना होता है। सभी 22 सर्कल्स में बिना किसी रुकावट के अपनी सेवाओं को देने के लिए कंपनियों को इन सभी सर्कल्स के फ्रीक्वेंसीज के लिए दाम चुकाना होगा।
अलग अलग सर्कल्स में स्पेक्ट्रम के लिए कंपनियां कितना दाम देना चाहती हैं, इसके लिए सरकार हर साल बोली मंगाती है, जिसे टेलीकॉम ऑक्शन के नाम से जानते हैं। 1994 में सबसे पहले टेलीकॉम ऑक्शन की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। 900 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए ऑक्शन हुए। इसके बाद 1800 मेगाहर्ट्ज के लिए 1997, 2000 और 2001 में ऑक्शन किया गया। इसके बाद सरकार ने पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कंपनियों को स्पेक्ट्रम दिया और सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में सभी लाइसेंस रद्द करने के आदेश दिए। फरवरी 2015 में हुए स्पेक्ट्रम ऑक्शन से सरकार को 1.1 लाख करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। पहली बार 700 मेगाहर्ट्ज को 1 अक्टूबर से शुरू हो रहे ऑक्शन प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है और सरकार को उम्मीद है कि इस साल 5.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व प्राप्त हो सकता है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। हमारे साथ शुम्य भट्टाचार्य जी बने हुए हैं, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार जो लगातार तमाम बड़ी आर्थिक खबरों पर अपनी निगाह रखते हैं। अगर आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, बहुत ही आसान है। जैसा हमने बताया कि आप ट्विटर और जीमेल के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं और जो डिटेल्स हैं आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आ रहे हैं। शुम्य, शुरुआत करते हैं इस चर्चा की और आपसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो कल शुरू होने वाला है, एक आम आदमी अगर समझना चाहे इसे, तो हवा में कुछ तरंगे हैं, उनका ऑक्शन होना है, उसके लिए बोली मंगाई जा रही है, कुछ पैसे आएंगे सरकार के पास, क्या फ़र्क पड़ेगा आम आदमी की ज़िंदगी पर? क्यों समझना ज़रूरी है? शायद समझना ज़रूरी उतना भी नहीं है क्योंकि स्पेक्ट्रम ऑक्शन जिसे कहते हैं, इट्स एन इंडस्ट्री टू गवर्नमेंट का रिलेशनशिप की बात है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डायरेक्टली कि डे टू डे इमीडिएट क्या असर पड़ता है, इमीडिएट कोई असर नहीं है। लेकिन होना चाहिए या नहीं, अगर कोई ये एक इंटेलिजेंट सवाल या अपने सामने रखे कि होना चाहिए या नहीं, किस लिए ये किया जा रहा है, तो फिर बहुत सारे मायने सामने उठ कर आते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सरकार का कोई भी रिसोर्स हो, देश का कोई भी रिसोर्स हो, उस रिसोर्स का आवंटन उसी तरीके से होना चाहिए जो सबसे फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो। और स्पेक्ट्रम वो चीज़ है जिसके थ्रू से एक मोबाइल फ़ोन दूसरे टेलीफोन से बातचीत करता है। तो वो स्पेक्ट्रम जो हमारे चारों तरफ है, उसका आवंटन उसी तरह से होना चाहिए जो लोगों के हित में हो। तो अगर इन मायनों पे, इन स्टैंडर्ड्स पे देखा जाए तो डेफिनेटली स्पेक्ट्रम ऑक्शन जो कल शुरू होने वाला है, और ये प्रक्रिया शुरू है 2009 से, जैसे आपके रिपोर्ट में बता रहे थे, तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। ये देश में लोगों को लगता है और एक जिसे कहते हैं ठोस सबूत है कि जो एलोकेशन होता है सरकार और बिजनेस का जो रिलेशनशिप है वो ट्रांसपेरेंट, फेयर एंड इक्विटेबल है। चलिए, आप कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस के लिहाज से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑक्शन की जो प्रक्रिया है। सवाल हमारे पास आने शुरू हो गए हैं। पहला सवाल लेते हैं और उसके बाद और भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ आपके लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखते हैं पहला सवाल क्या है इस कार्यक्रम में। टेलीकॉम ऑक्शन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ जीमेल के जरिए हमारा ये सवाल आते हुए, व्हाट शुड बी द स्टेप ऑफ गवर्नमेंट फॉर ऑक्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑन द देखिए, सवाल भी एग्जैक्टली वही राजेश कुमार जी जानना चाह रहे हैं कि अब थोड़ा सा हम ये भी समझना चाहेंगे कि जब से ये शुरू हुआ 1994 से, तो किस तरह से जो तरीका है उसमें बदलाव देखा गया। पूरी कहानी को थोड़ा सा अगर आप शॉर्ट में समेटने की कोशिश करें हमारे लिए। और आप ये वाला चीज़ में हम दोनों एक साथ में बहुत सालों से इस चीज़ को देख रहे हैं, तो इसलिए आप भी इसको अच्छी तरह जानते हैं। बट बेसिकली हाँ, जब से टेलीकॉम सेक्टर में लिबरलाइजेशन लाया गया 1994 में, और धीरे धीरे गवर्नमेंट्स ने BSNL और MTNL के हाथ से निकाल कर एक मार्केट बेस्ड ऑपरेशन की तरफ झुके, तो बहुत सारे पड़ाव आए। सबसे पहले चीज़ भी ये हुआ कि बहुत सारी कंपनीज़ को टेलीकॉम स्पेक्ट्रम पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रूल से आवंटन किए गए। स्पेक्ट्रम क्या चीज़ है? बेसिकली हम लोग वो चीज़, वो उस स्पेक्ट्रम उस चीज़ को कहते हैं टिपिकली, जो इस प्रोग्राम के लिए जो रेलेवेंट है, बिटवीन रफली ह्यूमन ईयर्स में एक पर्टिकुलर रेंज का ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आवाज़ सुन सकते हैं। और वो चलता है करीब अराउंड 100 मेगाहर्ट्ज से शुरू करके अराउंड 2400 मेगाहर्ट्ज तक। उसके बाद अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उसके नीचे और उसके ऊपर में हमारे कान में वो आवाज़ नहीं आता है। तो ये वाला स्पेक्ट्रम, ये जो दायरा है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के कुछ नियम है कि कौन से स्पेक्ट्रम किस कंपनी को किस तरीके से दिया जाएंगे। जैसे पुलिस को
डिफेंस सर्विसेज को, एम्बुलेंस को, रेडियो, टेलीविज़न, इन सारे सर्विसेज के लिए क्या क्या रेंज में स्पेक्ट्रम चलेगा वो एक अंतर्जातिक स्टैंडर्ड में आंका गया है, उसको हम मान के चलते हैं। उन चीज़ों को हम फिर स्पेक्ट्रम को ऑक्शन नहीं करते हैं, या गवर्नमेंट, किसी भी देश के गवर्नमेंट वो किसी दूसरे को अलाउट नहीं करते हैं। उनको छोड़कर जो बाकी सारा जो स्पेक्ट्रम रहता है वो फिर सरकार के पास फ्री हो जाता है देने के लिए किसी कंपनी को। तो और जैसे ही टेक्नोलॉजी, और ये तो हुआ स्पेक्ट्रम की बात, दूसरी तरफ है उस स्पेक्ट्रम में, उस पर्टिकुलर हर रेंज में, ये जो हमारे जो इससे मोबाइल फ़ोन है, हम लोग सारे मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, हर मोबाइल फ़ोन हर स्पेक्ट्रम को पकड़ नहीं पाता है। इसकी एक टेक्नोलॉजी है, तो इसलिए, और टेक्नोलॉजी टिपिकली उसी तरफ भागता है जो स्पेक्ट्रम इसलिए सबसे लाभदायक है, सबसे ज़्यादा रास्ते में हो। तो सिंपल चीज़ अगर माने कि जहाँ पे ऑफिस शहर में जहाँ पे ऑफिस ज़्यादा होते हैं वहीं पे ऑफिस ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं। तो इसी तरह से स्पेक्ट्रम में टिपिकली 800 और 900 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम वॉइस स्पेक्ट्रम के लिए, यानी कि आपस में बातचीत करने के लिए सबसे कन्वीनियंट है। तो सबसे पहले दौर में ये 900 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम ही अलॉट किया गया था। उसके बाद जब CDMA टेक्नोलॉजी आया, जो उससे थोड़ा सा हटके थोड़ा सा इम्प्रूव टेक्नोलॉजी था, डेटा पैकेजिंग अच्छा होता है, तो उसमें 1800 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम बहुत ही सही माना गया, उसको आवंटन किया गया। तो शुरुआत के जो लोग आए थे या शुरुआत में जो कंपनी आए थे, नेचुरली इन कंपनीज को वो स्पेक्ट्रम काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मिल गए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन थे उस वक्त में। जब सरकार ने, हम अगर कहानी को अगर बहुत जल्दी रैपिड फॉरवर्ड करें, जब सरकार ने देखा कि बहुत सारी कंपनियां इन बिजनेस में आना चाहते हैं, सरकार के लिए बेस्ट चीज़ यही था कि ऑक्शन किया जाए, फ्री में एडमिनिस्ट्रेटिवली आवंटन ना करके। तो 2009 से शुरू हुआ ये स्पेक्ट्रम का ऑक्शन का सिलसिला, और उसके बाद एक हर साल गवर्नमेंट मोटा मोटी यही कोशिश करते हैं कि कुछ स्पेक्ट्रम जैसे जैसे कमर्शियली वायबल होते जा रहे हैं, डिफेंस क्षेत्र में बहुत सारे स्पेक्ट्रम रखे गए थे जो अनयूज्ड थे, उन सारे स्पेक्ट्रम को भी रिलीज़ करके सरकार ऑक्शन में ला रहे हैं। और इस बारी अराउंड 2100 मेगा स्पेक्ट्रम अराउंड 600 या जो हम स्पेक्ट्रम अभी इस बारी ऑफर किया गया है लोगों को, कंपनीज को, मैं यहाँ पे लोगों में मतलब कंपनीज को बोल रहा हूँ कि कंपनीज को ऑक्शन करके खरीदने के लिए दिया गया है। और कल से उसी चीज़ का प्रक्रिया शुरू होगा, और इसका आवंटन भी कैसे होगा कि ये सर्कल वाइज है, यानी कि कुछ सर्कल्स में कुछ स्पेक्ट्रम खाली है, कुछ स्पेक्ट्रम खाली नहीं है। अब ये कैसे क्यों हुआ वो एक लंबा जरिया है, अगले सवाल वगैरह में उसमें हम देखेंगे कि अगर मौका मिला तो उसमें डिस्कस करने का कि वो उनमें उस तरह के डिफरेंसेस क्यों आते हैं। जी, हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या ये इतना एग्रेसिव क्यों हम बोल रहे हैं, हम इसे देश का सबसे बड़ा ऑक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्या इससे कुछ कीमतों पे प्रभाव पड़ेगा, क्या इससे कॉल ड्रॉप्स की समस्या कम होगी, ये जो तमाम मुद्दे हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, देखते रहिए इकोनॉमी टुडे। Spectrum has been such a big thing, and we can probably continue to talk for a few hours. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus.
Welcome to Business Morning Economy. Today we are discussing on telecom spectrum. We are getting in more number of questions. Without any delay, let's have a look at that question too. The question on Gmail, if I'm not wrong, let's have a look at that question. And the question is, after this auction, will tariff price increase by major telecoms? This is by Ankit Shah. Mr. Bhattacharya, do you think so? Well, I would think so, yes. Okay. There would be some amount of... Any specific reasons for that? First of all, when you're paying for something, then obviously that cost has to be passed. Yes. So yes, there would be some price changes. Whether that would... See, let's put it this way. It's not that the price just changes because, first of all, when people pay for something, when the company is paying for something, the company has to also then realize that money from there. But it's also that the nature of usage that people are making of mobile has also changed. So for instance, typically those who use voice-to-voice telecommunication, just picking up a plain vanilla phone and ringing up, that price will not change. Yes. It's almost certainly is even though 80% of the telecom companies' revenues do come from that, but that's not going to change much. Yes, yes. What is going to change is data. Absolutely. Revenue has been doubled of data services. And people are consuming data. I mean, like you go to any place, and it's not big cities, even in small cities, anybody you pick up, everybody carries a feature phone. And by everybody, I of course mean there is still, of course, large percentage of Indians who still just have a plain vanilla phone, but even feature phones. There's a basic phone in which at least there's some internet application possible. Even that is there among about 200 million Indians. Now, if that is the case, then there is a considerable amount of data traffic that they'll be consuming. Absolutely. And if that data traffic they are consuming, then the price of that will be higher because it consumes more space. And can we say this reserve prices is also 5.63 lakh crore rupees? In fact, do you think that is also affecting, because there are certain experts say that it is pretty much high? Yeah, let's look at it this way. What the government has been doing, and of course I can understand the constraints which the government has, is that the reserve price has been set on the basis of the last auction. Yes. Now, whenever the price realized goes higher, then it is for the guy who's selling it, and in this case it's the government, will have to always accept that there is a good demand. So therefore, I peg the price at that range. That level, yes. Along with that, it has to factor in the fact that whether taking the price too high makes it unaffordable for the ultimate consumer. Absolutely. Because we are going to use telecom. The mobile phone in India is not just a mobile phone. It is a means for practically everything, right from financial inclusion to every sort of services like health, education and everything. So if the price of that service becomes very high, then it actually cuts the people's ability to get those phones. Right. We have another question as well. Let's have a look at that question too on Twitter. If I'm not wrong, let's have a look at that question, what it is in the program. And the question on Twitter by Sandeep Bhalla, the question is, what is bandwidth which is being auctioned? How consumer would be affected by the auction? Show See, it's state-wise. So there are 11 states in which the auction is happening. Now, in different states, different bands of spectrum is being auctioned. For instance, let me tell you, in say Haryana. In Haryana, there is Vodafone, there is Idea, there is Bharti, okay, which are the Tata also. Now, Reliance Jio. Now, if you look at it among these guys, for instance, let's say Vodafone. Vodafone holds existing spectrum, 6.2 megahertz in the 900 band. We talked about 900 being the most sought after. Similarly, Bharti also holds about 8.4 megahertz in 900. Now that's a band. That they already have. So when they go in for auction, what will they be looking at? They will be looking for taking up more spectrum in bands where they don't have it. Now let's look at Bharti, for instance. Bharti already has 8.4 megahertz in 1800. So, and it has got 6.2 megahertz also in 1800. So, and 1800 megahertz is an auction. So it will like to consolidate its position there. So different companies will be pushing up their capacity. Will first of all look at what is their expected subscriber base going to be, and then on the basis of that, what is the additional amount of spectrum they would need to hold to provide better services. Why do they need spectrum, contiguous spectrum? Let's look at it like a traffic. Supposing you're going on a highway.
Now you want the highway to go for the vehicle to run fast. The highway should be smooth so that the next knot of the highway should be latching onto the current highway, isn't it? If supposing the highway shifts, supposing the traffic is moving this way, and then if it shifts, then obviously the speed that you have developed will not be useful. So there will be a traffic jam. So people will be wanting their traffic, which is telecom traffic, to be moving on the same highway band. Yes. So provided that the band is available for which the auction is being called for, an incumbent company will like to do it. But if it doesn't, then obviously it'll say that doesn't make sense, because then I'll have to then invest in infrastructure to create a separate highway practically. So that is how the auctions will happen. Right. शुभ बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, आइए ट्विटर के जरिए देखते हैं कि दर्शक क्या जानना चाह रहे हैं. ऑब्वियसली कंज्यूमर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस तरह के लोग सवाल पूछ रहे हैं और ये भी समझना चाह रहे हैं. चलिए ये माही सिंह राज ये एक रेगुलर हमारी दर्शक हैं जो लगातार सवाल करती हैं. व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव टुवर्ड्स इंक्रीजिंग द फास्टर आउट ऑफ नेटवर्क टावर्स स्पेशली इन द रिमोट एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन्स. ये मेरे ख्याल से डायरेक्टली तो जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से ज़रूर जुड़ा. अभी शायद लेफ्ट विंग एरियाज़ में जो अभी सरकार ने किया है वो एक कमेंडेबल आई थिंक ऑपरेशन सक्सेसफुल है. मेरे ख्याल से टाइम से पहले उसको कंप्लीट किया गया, इसे क्रेडिट देना पड़ेगा. और ये टावर्स के जो एक्सपेंशन की जो बात है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टावर में इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी जगह में कमियां पाई गई है. और खासकर टेलीकॉम अथॉरिटी, रेगुलेटरी अथॉरिटी बहुत बड़ी जो सर्विस असेसमेंट क्वालिटी करते हैं, इवन बड़े बड़े शहरों में भी देखे हैं कि कॉल ड्रॉप्स वगैरह के जो प्रॉब्लम होते हैं वो इसलिए होते हैं कि टावर्स एडिक्वेट नहीं है. तो टावर्स डेफिनेटली बनाने की ज़रूरत है और दूर दराज के इलाके में तो बहुत ही ज़रूरी है, खासकर अभी हम जिस तरह से टेलीकॉम सर्विसेज को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं. अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वह जो दर्शक हैं वो क्या जानना चाह रहे हैं. अगला ट्विटर का सवाल जो है वो जीमेल के जरिए चलिए सवाल है. हाउ डज दिस प्रोसीजर इंश्योर दैट देयर इज नो कॉल्यूजन बिटवीन द बिडर्स. मदन गोपाल गोयल साहब, ये चूंकि लाइव क्वेश्चंस हैं और लोग ये समझना चाह रहे हैं कि क्या कंपनियां आपस में मिलकर के कुछ तय तो नहीं कर रही थी. बिल्कुल, ये एक बहुत जायज़ सवाल है. तो इसके लिए जो ऑक्शन का जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है क्लॉक ऑक्शन. यानी कि जैसे एक बिडर, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बिडर दूसरे बिडर के साथ नहीं बैठते हैं, वो तो ऑब्वियस है. इनफैक्ट कोई सेंट्रल जगह पे जाके नहीं बैठते हैं. नॉट ओनली दैट, जब ऑक्शनर जो होता है, जैसे अगर आप ऑक्शन करवा रहे हैं और मैं वेंकटर में हम दोनों ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बिड स्पेक्ट्रम के लिए, तो हम हमारे टर्मिनल में हमको सिर्फ मेरा प्राइस क्या था एक पर्टिकुलर बैंड के लिए वो दिखेगा, और उसके ऊपर अगला क्या बिड आया है उस बिड के ऊपर मेरी क्या राय है. यानी कि अगर वो बिड बढ़ गया है, मैंने अगर मान लीजिए 100 रुपये मांगा, किसी ने बोला नहीं मैं 101 रुपये दूंगा, तो 101 रुपये का वो फिगर आएगा, लेकिन वो कंपनी का नाम नहीं आएगा. और यहाँ पे चूंकि बहुत सारी कंपनियाँ एक घूम रहे हैं, तो इसलिए मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि वो पता करना कि वो 101 रुपये का. तो इसलिए मेरे पास ऑप्शन सिर्फ वही है, अगर मुझे पता भी चल जाए थियोरेटिकली, तब भी मेरे पास मुझे अपना पोजीशन होल्ड करने के लिए मुझे उस बिड को इन केस काउंटर करना ही पड़ेगा. बिल्कुल. और वो काउंटर करते वक्त अगर मैंने, और टाइम चूंकि एक सेट किया हुआ है, इसलिए अगर मैंने उस टाइम के अंदर अगर मैंने रिस्पांस नहीं दिया, क्योंकि ये कांटा घूमता रहेगा, तो अगर मेरे पास जो विंडो ऑफ ऑप्शन है उस वक्त अगर मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो मेरे से पास ऑन हो जाएगा. तो इसलिए मैं चाहे अगर पता भी कर लूँ, इससे मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होगा. इसलिए कंपनीज को बिड करना ही पड़ता है. और इसीलिए आप देखेंगे कि पिछले जो ऑक्शंस हुए हैं उसमें प्राइसेस इतने दूर भागे हैं कि लोगों ने कभी कभी टेलीकॉम कंपनीज के सेहत के बारे में भी आशंका प्रकाश किया है कि ये शायद सस्टेनेबल नहीं है इस तरह के हाई प्राइसेस. अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और ट्विटर के जरिए हमें ये सवाल मिला, ये देखते हैं क्या है ये सवाल. What are the change seen in telecom sector after the auction, Diwakar Jha? अगर आप इसको प्राइसेस से या फिर कॉल ड्रॉप से जोड़ पाएं. एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही वाला चीज़ है कि कॉल ड्रॉप्स वगैरह की जो बात चल रही है, जो कि कंपनीज बहुत सारे कह रहे थे कि हमारे पास स्पेक्ट्रम नहीं है, तो वो एक जो उनका जो एक शॉर्टेज का जो एक फीलिंग है, एक आबोहवा है, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा. ये उन सारे सेक्टर्स में एक्चुअली अभी टाइम नहीं है, नहीं तो अदरवाइज हम डिस्कस कर सकते थे स्टेट वाइज जिन सेक्टर्स में, जिन स्टेट्स में ये डिस्कशन जहाँ पे ऑक्शंस होंगे कि किस तरह के बैंड्स आ रहे हैं. और ये ज़्यादातर 900, 1800 जो काफ़ी यूज़फुल बैंड्स हैं, तो हमने जिक्र पहले भी किया था, तो उसमें आएंगे. तो नेचुरली इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट वही होगा कि टेलीकॉम सर्विसेज की क्वालिटी ज़रूर ही बढ़ेगी आफ्टर दिस ऑक्शन.
Right. In fact, call drop will be an afterthought as well. Many believe in it. Let's take another question as well. We are running out of time. Let's take some last question. And the question is on ट्विटर के जरिए टेलीकॉम ऑक्शन से कंज्यूमर्स को क्या फायदा होगा, ये दिवाकर झा जानना चाह रहे हैं, अलका सिंह पूछ रहे हैं कि and the question on Gmail at this moment, Satya Prakash, is spectrum auction going to affect prices of data packs? We've already discussed this question. Many people are pretty much concerned about what could be the telecom prices for the customers at this moment. सत्कार सिंह साहब तो जानना चाह रहे हैं क्या कोई इंडिविजुअल भी इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है? तो मुझे लगता है इंडिविजुअल एक इंटरेस्ट जो है वो भी इस कार्यक्रम को देखने के बाद खुद ही एक टेलीकॉम कंपनी शुरू करें। हाँ, सवाल बिल्कुल होने चाहिए, और डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी बात है कि लोग जितना ज़्यादा सवाल करेंगे तो सब चारों तरफ सबके ही जो पोजीशंस है वो सामने आएंगे, खुलासा होगा, डिस्कशन चर्चा होगी, और आपके जैसे इस तरह के प्रोग्राम से फ़ायदा ये होता है कि इन्फॉर्म्ड माहौल बन जाता है डिस्कशन के लिए, विच आई थिंक इज़ वेरी गुड। डेटा पैक्स का वही वाली बात है कि सिंपल चीज़ है कि रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं अगर उससे का तुलना करें वॉइस टेलीफोनिक का, तो उसका प्राइसेस बढ़ने का चांसेस नहीं है। लेकिन अगर हम जैसे ही सोफिस्टिकेटेड चीज़ खरीदने जाते हैं, कुछ दामी चीज़ खरीदेंगे, कुछ बेटर चीज़ खरीदेंगे, तो नेचुरली उसका फिर प्राइस बढ़ेगा ही। डेटा पैक टेलीकॉम सर्विसेज के अंदर इट इज़ प्रीमियम सर्विस माना जाएगा, तो निश्चित ही उसका प्राइस वॉइस कॉल से आगे तो बढ़ेगा ही। Well, in fact, thank you very much, Mr. Shubhamay Bhattacharya. In fact, I personally feel, Ajay, in our show Economy Today, for the first time, we've discussed social sciences and physical sciences of a specific topic as well. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।